हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 105। ओके, तो चले स्टार्ट करें। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं स्टार्ट करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 105। पावर्स, privileges and immunities of parliament and its members। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। तो ये मैं पढ़ूंगी। ये किस में दिया गया है? 105। 105 से स्टार्ट होता है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करती हूँ। 105 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 105 कहता है, पावर्स, privileges etc of the houses of parliament and of the members and committees thereof। यानी संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। तो 105 powers, privileges etc of the houses of parliament and of the members and committees thereof। Number 1, subject to the provisions of this constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the parliament, there shall be freedom of speech in parliament। There shall be freedom in speech। There shall be freedom of speech in parliament। यानी उनको क्या है? संसद में भाषण देने का अधिकार और उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनके विशेषाधिकार हैं और उनकी शक्तियां हैं, वो सब उनको इस अनुच्छेद में वर्णित की गई हैं कि ये सब उनको दी जाएंगी। तो दोस्तों, तो अब मैं पढ़ती हूँ नंबर 1। सब्जेक्ट टू दी नंबर 105 आर्टिकल्स का नंबर 1, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन and to the rules and standing orders regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in parliament। Number 2, no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court। संसद का कोई भी सदस्य यानी कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। In respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes or proceedings। Number 3, in other respects the powers, privileges and immunities of each house of पार्लियामेंट। मतलब इसका मतलब है कि संसद का कोई भी जो सदस्य है उसको भारत के किसी भी न्यायालय में उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्रति प्राधिकार द्वारा उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है। तो नंबर 3 में क्या कहा गया है? इन अदर रेस्पेक्ट्स द पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों, समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। एंड
of the members of the committees of each house shall be such as may from time to time be defined by parliament by law, and until so defined shall be those of that house and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of Constitution 44th Amendment Act 1978. नंबर 4 यानी आर्टिकल 105 का नंबर 4, द प्रोविजन ऑफ clauses first, second, and third shall apply in relation to persons who by virtue of this constitution have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of a house of the parliament or any committee thereof as they apply in relation to member of the parliament. 106, salaries and allowances of members, सदस्यों के वेतन और भत्ते. Members of either house of parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the parliament by law, and until provision in that respect is so made, allowances at such relate and upon such conditions as were immediately before the commencement of this constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ सही में समझने के लिए. अनुच्छेद 105, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 में कहा गया है, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां. 105, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि. इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र होगा. यानी उनको जो नियम, उपबंध, विनियम, जो भी संविधान के जो उपबंध हैं और उसकी जो प्रक्रिया का विनियमन करने वाले जो नियम हैं, जो आदेश हैं, स्थायी रूप से जो लागू रहते हैं, उनके रहते हुए संसद में जो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उनको यानी अपनी बात कहने का अधिकार होगा, वाक्य स्वातंत्र्य. नंबर 2, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी. यानी जब कोई भी जो पार्लियामेंट का जो मेंबर है, जब सदन में कोई भी बात कहता है तो न्यायालय में उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाएगी. किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन में प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, इसके साथ साथ कोई प्रतिवेदन पत्र, मत जो होते हैं उनके या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी. इतनी सारी आज़ादी मिली है पार्लियामेंट्स के मेंबर्स को. ये कौन देता है? भारत का संविधान. नंबर 3, अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों, प्रत्येक सदन का मतलब 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लेकिन सबसे शक्तिशाली सदन है लोकसभा. और स्थायी कौन सा सदन है? राज्यसभा. राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके जो सदस्य हैं वो 2 साल के बाद रिटायरमेंट लेते रहते हैं. नए मेंबर्स का चुनाव होता रहता है प्रत्येक 2 साल के बाद.
उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा का, इसका 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष पूरा करने के बाद लोकसभा भंग कर दी जाती है। तो ये तो हो गया दोनों सदनों की पावर्स। अब नंबर 3 ऐसी होगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती है तब तक वही होगी जो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी। नंबर 4 जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसके किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1 और खंड 2, खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होंगे। नंबर 6 सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे। 106 में ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल कहता है कि जो सदस्य हैं संसद के, उनके वेतन और भत्ते वो कैसे दिए जाएंगे। संसद समय समय पर कानून द्वारा अवधारित करेगी। जब तक इस संबंध में इस प्रकार प्रबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी प्राप्त करने के हकदार होंगे। कल मैं पढ़ूंगी विधायी प्रक्रिया 107 अनुच्छेद 107 108 विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेचर प्रोसीजर और लेजिस्लेचर प्रोसीजर। तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ थोड़ा। तो ठीक है, तो कल मैं शुरू करूँगी। हाँ, मेरे अपने चैनल संध्या मैम, ये मेरा ही चैनल नहीं, वो आपका अपना चैनल है। प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके संध्या मैम के चैनल पे इस संविधान के बारे में सुन सके, उसको जान सकें संविधान में क्या दिया हुआ है। अभी तक तो पुस्तकालय में ही रहता है ना, पुस्तकालयों में रहता है, जजों के पास, वकीलों के पास, और जो भी है, जो सांसदों की, पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरीज़ है उनके पास, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी वगैरह करते हैं वही पढ़ते हैं संविधान को। और जो भी इस एरिया में जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ही इसको पढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये संविधान हमारा घर घर पहुँचे, उसके ज्ञान को सभी लोग सुने और अपने अधिकारों को जाने। जैसे कि बड़े बड़े घपले होते हैं, आप वोटिंग राइट्स के बारे में पता नहीं है कि कहाँ किसको डालना है। लोकतंत्र और संविधान को जीवित तो तभी रख पाओगे जब आप संविधान पढ़ोगे। संविधान पढ़ने के लिए सबसे पहले संविधान को खोजना पड़ेगा, किधर है हमारा संविधान, कहाँ है, कैसे पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर जागरूकता आएगी, फिर आप समाज में उस जागरूकता को फैलाओगे। तो इसलिए संविधान पढ़ोगे तो अपने अधिकारों के जानोगे, सरकारों की और प्रशासनिक व्यवस्था की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं उनको उजागर कर पाओगे। क्योंकि जब भी कोई भी सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चलेंगी, लोकतंत्र के अगेंस्ट चलेंगी, तो क्या होगा, कैसी सरकार आएगी, तानाशाही वाली। तो इसलिए तानाशाही से अपने देश समाज को बचाने के लिए हमें संविधान पढ़ना है, हर कीमत पे पढ़ना है। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल संध्या मैम नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज़। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कल मैं पढ़ूंगी नए आर्टिकल के साथ। जय भीम।